In this today's lecture, we will discuss electrostatic field, work energy and potential, part 1. So, electrostatic field, work energy and potential. Work energy potential, electrostatic field. So, firstly we will discuss the force, then field, then energy and then potential. तो फोर्स के लिए यहाँ पे जो हम लॉ पढ़ते हैं वो है कूलॉम्स लॉ. Coulomb's. According to the Coulomb's law, any two charges placed in space may be of similar kind of nature or different kind of nature, may experience a force of repulsion or force of attraction. Suppose this is a positive charge q1, this is another positive charge q2, they will experience a force of repulsion between them. But if one of the charge is negative, either q1 or q2, okay, if this is positive this is negative, and if this is positive this is negative. ठीक है, मतलब दोनों में से दोनों की पोलैरिटी जो है वो डिफरेंट होनी चाहिए, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, या दूसरा पॉजिटिव तो पहला नेगेटिव, तो उस केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा. ठीक है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कूलॉम्स लॉ ऑफ forces, this can be a force of attraction or this can be a force of repulsion. Attraction or repulsion. So we can say that Coulomb's law, with the help of Coulomb's law, you can give the formula of the force acting between the two charges. If the charges of the similar kind of nature, similar kind of polarity, force of repulsion will be there. And if the charges of different kind of nature, different kind of polarity, force of attraction will be there. And this force is given by a formula. That formula F is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught q1 into q2 upon r square into unit vector AR, means AR cap. Now this is something which is very, very important. F is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught q1 and q2 upon r square into unit vector AR. Okay, so let's move to the next slide. आइए हम इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं. ये हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में x और y एक्सिस ले लिए. सपोज z भी है यहाँ पर, ये चार्ज है एक हमारे पास और ये दूसरा चार्ज है. द लोकेशन ऑफ दिस चार्ज q1 इज लेट्स से x1 y1 z1. Location of this charge, let's say q2, is x2 y2 z2. Of course, with respect to the origin, this is the origin, so this is the location of the charge and this is the location of another charge. Okay, and in between these two charges, this is the line joining both the charges. Suppose this is a positional vector r1, this is the positional vector r2, and q1 is imposing a force on q2. Let's say the direction is this, so this is r12. Okay, so r1 vector, r2 vector, r12 vector. Okay, now how can we express the vector as well as the unit vector? This is the origin. ठीक है, अब मुझे मान लीजिए वेक्टर r1 को स्पेसिफाई करना है, तो हाउ कैन वी राइट दिस? सिंपली आप ये देखिए कि r1 की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ है, ओरिजिन से कहाँ है, इस पॉइंट तक. लेट्स से दिस पॉइंट इज स्मॉल ए एंड दिस पॉइंट इज स्मॉल बी. सही है, सो r1 वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, o to a, सो आई हैव टू राइट oa वेक्टर, एंड दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, आप देखिए कि स्टार्टिंग o से हो रही है, o इज द ओरिजिन, सो द कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन इज 0 0 0 and it is moving towards a की coordinate x1 y1 z1, so we have to write here x1 y1 z1
टर्मिनेटिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट माइनस ओरिजिनेटिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0 0 0. Okay, this is the way of expressing the vector which is representing the orientation of a particular charge in the space. Okay, so when you can express this r1 vector, how can I write this? X1 minus 0, so this is x1 ax, y1 minus 0, so this is y1 ay. Similarly, z1 minus 0 means z1 az. So this is r1 वेक्टर इज इक्वल्स टू x1 ax प्लस y1 ay प्लस z1 az. ये हमारे पास वेक्टर r1 आ गया. अब इस वेक्टर r1 का यदि मैं मॉड निकालता हूँ, मॉड ऑफ r1, तो ये क्या आएगा मेरा? मॉड ऑफ r1 इज इक्वल्स टू, दिस विल बी इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर. ये मॉड आ गया. ठीक है. नाउ हाउ कैन यू राइट द एक्सप्रेशन ऑफ अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ r1? मीन्स आई हैव टू राइट दिस r1 cap. This is simply vector r1 divided by mod of vector r1. ठीक है. किसी भी वेक्टर को यदि हम उसके मॉडुलस यानी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो हमें उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर प्राप्त हो जाएगा. तो r1 वेक्टर क्या है मेरा? x1 ax प्लस y1 ay प्लस z1 az और डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ द वेक्टर क्या है हमारे पास? रूट ओवर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर. ओके, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर. सिमिलरली इफ वी वांट टू एक्सप्रेस वेक्टर r2, सो हाउ कैन आई राइट r2? देखिए कहाँ से कहाँ जा रहा है? o टू b, ओरिजिन से b पॉइंट की तरफ. तो टर्मिनेटिंग पॉइंट b हो गया, b के कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 है. इस ओरिजिनेटिंग पॉइंट 0 0 0 ओरिजिन हो गया. सो आई हैव टू राइट हियर x2 y2 z2 minus 0 0 0. Okay, so what I can write here, r2 vector is equals to x2 minus 0 means x2 ax plus y2 minus 0 means y2 ay plus z2 minus 0 means z2 az. So this is the expression of the vector r2. Once we have vector r2, we have to determine the modulus of the vector r2, and that is nothing but root over x2 square plus y2 square plus z2 square. Okay, and once we have vector and the modulus of the vector or the magnitude of the vector, by dividing these two we can determine the unit vector in the direction of r2. So how can we write this? Let's see. r2 cap, this r2 cap will be equal to vector r2 upon mod of vector r2, and this can be simply represented as x2 ax plus y2 ay plus z2 az divided by रूट ओवर x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर. तो इस प्रकार हमने आपको वेक्टर r1 बता दिया, वेक्टर r2 बता दिया, वेक्टर r1 वेक्टर r2 का मैग्नीट्यूड बता दिया, और वेक्टर r1 वेक्टर r2 दोनों की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा वो भी बता दिया. अच्छा, अब पिछली स्लाइड में आप देखिए कि चार्ज q1 चार्ज q2 पे फोर्स लगा रहा है. दिस कैन बी अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और दिस कैन बी अ फोर्स ऑफ रिपल्शन. इसको हम निकालें कैसे? तो इसको निकालने के लिए हम कूलॉम्स लॉ की मदद लेंगे, और वेक्टर अब हमारा क्या होगा? q1 से q2 की तरफ, यानी वेक्टर r12. नाउ दिस वेक्टर r12, हाउ कैन यू एक्सप्रेस दिस वेक्टर r12? वी हैव टू एक्सप्रेस, r1 से r2 है, सो दिस इज r2 माइनस r1. ठीक है, r2 माइनस r1. सो r2 के कोऑर्डिनेट आपको पता है, क्या है r2 के कोऑर्डिनेट? x2 y2 z2. सिमिलरली r1 के कोऑर्डिनेट पता है आपको, क्या है? x1 y1 z1. सो बाय सब्ट्रैक्टिंग दीज कोऑर्डिनेट्स we can write the expression for the vector r12, and that is simply x2 minus x1. I have to use eraser over here. ठीक है. So this will be x2 minus x1 unit vector ax plus y2 minus y1 unit vector ay plus z2 minus z1 unit vector az. This is vector r12. And similarly, if we want to write vector r12 mod, this can be simply, we can express root over x2 minus x1 whole square plus
y2 minus y1 whole square plus z2 minus z1 whole square. Okay, once we have vector r12 and we have modulus of the vector r12, we can determine the r12 cap. What is this r12 cap? Similarly, r12 vector upon mod of r12. Okay, so we can write this. Now I am using the sigma notation because every time it is very tedious to write the entire expression when the expression is quite big. Okay, so I am making little bit simple. Sigma x2 minus x1 ax. अब सिग्मा x2 माइनस x1 ax का मतलब क्या हो गया? x2 माइनस x1 ax प्लस y2 माइनस y1 ay प्लस z2 माइनस z1 az डिवाइडेड बाय रूट ओवर सिग्मा x2 minus x1 whole square. Now what does it mean? Root over sigma x2 minus x1 whole square means root over x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square plus z2 minus z1 whole square. ठीक है? So instead of writing that entire expression, I am just using the sigma notation. तो ठीक है, हमारे पास आ गया r12 कैप. अब कूलम्स लॉ के मुताबिक फोर्स का एक्सप्रेशन क्या है? फोर्स का एक्सप्रेशन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 इंटू q2 अपॉन वेक्टर. वेक्टर कौन सा लिया जाएगा? वेक्टर देखिए, a से b में फोर्स लग रहा है. a का पोजिशनल वेक्टर r1 है, b का r2 है और डायरेक्शन r1 से r2 की तरफ है, यानी वेक्टर r12 लिया जाएगा. ठीक है, वेक्टर r12 तो यहाँ लिया जाएगा r12 स्क्वायर. और आप देखिए यूनिट वेक्टर लिया जाता है, यूनिट वेक्टर ar. तो यहाँ यूनिट वेक्टर कौन सा रहेगा? यूनिट वेक्टर उसी डायरेक्शन में रहेगा जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, यानी r12 कैप. मीन्स आई कैन राइट r12 कैप. Now you can write this f is equals to 1/4 pi epsilon naught q1 into q2 upon r12 स्क्वायर. वेक्टर का स्क्वायर हमेशा वेक्टर के मॉड के स्क्वायर के बराबर होता है. वी नो दैट फ्रॉम द बेसिक्स ऑफ वेक्टर अलजेब्रा. r12 कैप को हम क्या लिख सकते हैं? r12 कैप को हम लिख सकते हैं वेक्टर r12 अपॉन मॉड r12. ओके, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होगा? उस वेक्टर में उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को डिवाइड करना. और ये r12 का स्क्वायर है, इसको हम मॉड r12 का स्क्वायर लिख ही सकते हैं. मीन्स आई कैन राइट f इज इक्वल्स टू q1 into q2 divided by 4 pi epsilon naught. This will become r12 mod cube. Okay, और ऊपर क्या हो गया? वेक्टर r12. Now you can simplify this. f is equals to q1 into q2 upon 4 pi epsilon naught. r12 वेक्टर को हम कैसे लिखेंगे? देखिए पिछली स्लाइड में r12 वेक्टर सिग्मा x2 minus x1 ax. Okay, so I can write sigma x2 minus x1 ax divided by mod r12. mod r12 को हम कैसे लिखते हैं? mod r12 can be represented as root over sigma x2 minus x1 whole square. Okay, so this is root over sigma x2 minus x1 whole square. और इसका क्यूब है तो इस पूरे की पावर क्या आ जाएगी? यहाँ पे 3 हो जाएगी. और स्क्वायर रूट को हम क्या लिख सकते हैं? पावर 1/2. ठीक है, इस पूरे एक्सप्रेशन को जो डिनोमिनेटर में दिखाई दे रहा है इसको आप बोलेंगे स्क्वायर रूट ऑफ द समेशन ऑफ स्क्वायर्स. और उसका भी हमने क्या कर दिया? क्यूब, यानी क्यूब ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द समेशन ऑफ द स्क्वायर्स. मीन्स यू कैन राइट, सिंप्लीफाई कर देते हैं, q1 इंटू q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा x2 माइनस x1 ax डिवाइडेड बाय, अब इसको मैं लिख देता हूँ सिग्मा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और इस पूरे की पावर 3/2. ठीक है, नाउ दिस इज समथिंग व्हिच इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू लर्न. ओके, तो ये एक्सप्रेशन आपको ध्यान रखना है कूलम्स लॉ का. कब? जब कोई भी दो चार्जेस रखे हैं जिनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन काम कर रहा है, depending upon the nature of the charges, whether they are of same kind, same polarity, or they are of different kinds or different polarity. ठीक है, तो ये तो बात हुई फोर्स की. अब फोर्स के बाद हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की. ठीक है, फोर्स और फील्ड में जो
बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि फोर्स लगाने के लिए हमेशा दो चार्ज का होना ज़रूरी है, लेकिन फील्ड एक अकेले चार्ज के द्वारा आ सकती है। ठीक है, सो दिस इज द वेरी बेसिक डिफरेंस। फोर्स रिक्वायर्स मिनिमम 2 चार्जेस एंड फील्ड रिक्वायर्स मिनिमम 1 चार्ज। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक से ज़्यादा चार्ज होंगे तो फील्ड नहीं आएगी, सबके कारण फील्ड आएगी, लेकिन मिनिमम एक चार्ज होना चाहिए जिसके कारण फील्ड आती है। अब उस फील्ड को हम लिखते हैं E इज इक्वल्स टू, एक तो तरीका है F अपॉन क्यू, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिफाइन करना है, तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो इसके मुताबिक इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर कूलम, क्योंकि फोर्स की यूनिट न्यूटन है, चार्ज की यूनिट कूलम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या हो गई, न्यूटन पर कूलम। दूसरी बात जो मैं आपसे यहाँ पे करना चाहता हूँ, देखिए फोर्स का एक्सप्रेशन अभी अभी आपने निकाला है, वो एक्सप्रेशन है हमारे पास 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन R² इंटू यूनिट वेक्टर AR। ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इन टर्म्स ऑफ R12 और AR12, जनरल एक्सप्रेशन जो मैंने लिखा था पहली स्लाइड में वो मैं फॉलो कर रहा हूँ। सो F इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R² यूनिट वेक्टर AR। सो इफ you divide this force by Q1, let it be F upon Q1 is equals to 1/4πε0, in the bracket it is Q2 upon R² into unit vector AR। ठीक है, और if you divide by Q2, so this is F upon Q2 and it is simplified as 1/4πε0 in the bracket Q1 upon R², मुझे R2 नहीं लिखना था यहाँ, R² into unit vector AR। तो क्या फर्क पा रहे हैं आप इस और इस एक्सप्रेशन में, गौर करेंगे, ऊपर वाले एक्सप्रेशन में हमने Q1 से डिवाइड किया और नीचे वाले एक्सप्रेशन में हमने डिवाइड किया है Q2 से। तो हैं तो दोनों ही फील्ड, इसको भी मैं फील्ड नाम दूंगा, इसको भी फील्ड नाम दूंगा, लेकिन ये फील्ड कहलाएगी EQ2 और ये फील्ड कहलाएगी EQ1। यानी फील्ड किसी एक पर्टिकुलर चार्ज के द्वारा लगाई जाती है, वो कौन से चार्ज के द्वारा लगाई जा रही है ये जानने के लिए आप राइट साइड में मौजूद चार्ज को देख सकते हैं, लेफ्ट में मौजूद चार्ज को मत देखिए। ठीक है, जैसे F अपॉन Q1 है तो Q1 पे फील्ड नहीं लगाई जा रही, ठीक है, सॉरी Q1 पे फील्ड लगाई जा रही है लेकिन Q2 के द्वारा लगाई जा रही है। ठीक है, वी कैन से लाइक दैट। सो दिस EQ2 इज बिकॉज ऑफ Q2 चार्ज के द्वारा ये फील्ड लगाएगी, एंड EQ1 इज बिकॉज ऑफ Q1 चार्ज के द्वारा ये फील्ड लगाएगी। ठीक है, बिकॉज एज आई टोल्ड यू फील्ड रिक्वायर्स वन ऑफ द चार्जेस, फोर्स रिक्वायर बोथ ऑफ द चार्जेस। ठीक है, तो एक तो ये डेफिनेशन हमारे पास आई, और इसको आगे बढ़ते हुए हम डिराइव कर सकते हैं, फील्ड के बाद फोर्स में जा सकते हैं, फील्ड के बाद वर्क डन में जा सकते हैं, पोटेंशियल में जा सकते हैं, आगे की बात हम कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए एक एग्जाम्पल ले लेता है ना, लेट अस टेक वन न्यूमेरिकल क्वेश्चन। सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट द कंडीशन, देखिए इस तरह से हमने ले लिया, 4 equal charges placed at x is equals to plus minus 3 meter and y is equals to plus minus 4 meter। ठीक है, 4 equal charges each of 20 microcoulomb। okay, 4 equal charges each of 20 microcoulomb placed at x is equals to plus minus 3 meter, y is equals to plus minus 4 meter, then find force at 100 microcoulomb charge, 100 microcoulomb charge at z is equals to 5 meter। ठीक है, तो कहने का मतलब कि x y z तीनों एक्सिस हैं हमारे पास, इस तरह से हम बना देते हैं उसे। ठीक है, ये x एक्सिस है हमारा, ये y है, ये z है। तो z में हमारे पास एक पॉइंट हो गया 0 0 5। ओके, x में हमारे पास दो चार्जेस हुए, यहाँ पे प्लस माइनस 3 मीटर है, तो इसको मैं लिख देता हूँ 3 0 0,
और इसको हम लिख देते हैं -300, ओके। और y में ±4 मीटर है, तो दो चार्जेस यहाँ हो गए, पॉजिटिव में हो गया 040 और नेगेटिव में हो गया 0 -40, ओके। तो चार चार्ज हमारे पास इक्वल हैं। लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन, ओके। So one charge is placed over here, another here, third one here and fourth one here, okay। और एक चार्ज हमारे पास है let's say here, ये डिफरेंट हो गया, ओके। तो आप देखेंगे कि ये वाला चार्ज भी इस पे फोर्स लगा रहा है, ये भी इस पे फोर्स लगा रहा है, ये भी इस पे फोर्स लगा रहा है, ये भी इस पे फोर्स लगा रहा है। तो इस तरह से चार चार्जेस मिलकर के Z पे मौजूद 100 माइक्रोकूलम के चार्ज पे फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। सबकी डायरेक्शन किसकी तरफ है? सबकी डायरेक्शन है 100 माइक्रोकूलम की तरफ। तो आपको वो नेट फोर्स बताना है, ओके। तो सबसे पहले हम इन वेक्टर के कुछ नाम दे देते हैं, ठीक है। लेट्स से दिस वेक्टर इज R1, दिस वेक्टर इज R2, दिस वेक्टर इज R3, दिस वेक्टर इज R4, और इनको बना लेते हैं। वेक्टर का एक्सप्रेशन क्या बनेगा? तो देखिए R1 की डायरेक्शन क्या है? 300, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 300 से 005, तो 005 एंड -300, ठीक है। सो 0 -3, so this is basically -3ax, 0 -0 0 and 5 -0 is 5az, ठीक है। Similarly you can form R2, you can form R3, you can form R4, okay। So I am writing directly 0 -0 0 0 -4 4ay plus 5 -0 5az, ओके। R3 यदि आप बनाएंगे तो 0 -3 तो 3ax 0 -0 0 5 -0 5az, ओके। और R4 यदि आप बनाएंगे 0 -0 0 0 -4 4ay plus 5 -0 means 5az, okay। So we have -3x plus 5az, 4ay plus 5az, 3x plus 5az and -4ay plus 5az. We can also talk about the modulus of that. This is R1 mod, R2 mod, R3 mod, R4 mod, इसको आप निकाल सकते हैं। 3 का स्क्वायर 9 और 25 रूट 34, 4 का स्क्वायर 16 और 25 41, this is also root 34 and this is also root 41, okay। Once we have vector and we have the magnitude, it is very easy to write unit vector, okay। So आप लिख सकते हैं R1 cap, R2 cap, R3 cap and R4 cap, इन सब के बारे में आप बता सकते हैं। और जब चारों हमारे पास आएंगे तो हम क्या करेंगे? हम नेट फोर्स निकालेंगे, और नेट फोर्स निकालने का तरीका क्या होगा? कूलम्स लॉ, Q1 Q2 अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R² इंटू AR कैप। तो पहले हम R1 की वजह से एक फोर्स F1 आएगा, फिर R2 की वजह से F2 आएगा, R3 की वजह से F3 आएगा, R4 की वजह से F4 आएगा, और फिर सबका सम आएगा। मतलब जो नेट फोर्स आप बताएंगे F, दिस विल बी इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, ओके। सो इफ आई एम राइटिंग F1 एक्सप्रेशन, अच्छा एक बात और हम डिस्कस कर लेते हैं कि चार्जेस हमेशा 20 माइक्रोकूलम 100 माइक्रोकूलम 20 माइक्रोकूलम 100 माइक्रोकूलम, यानी एक कॉमन फैक्टर सब में निकल के आएगा 20 × 100, और माइक्रो क्या हो गया? पिको, तो 10⁻⁻12, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है? 9 × 10⁹। तो ये चीज़ जो है, ये कैलकुलेशन, इसको मैं अभी एक कांस्टेंट c मान लेता हूँ, चलिए। ये सब में निकल के आएगा F1 F2 F3 F4 में। तो इसको अगर मैं कैलकुलेट कर लूँ तो देखिए ये 10⁻⁻12 है, 9 तो -3 और ये हट गया तो 9 दूनी 18, तो ये कांस्टेंट 18 हो गया। तो एवरी टाइम आई नीड नॉट टू कैलकुलेट in F1 and F2 and F3 and F4. Once I calculated this is 18, am I right? 9 10 11 12 कैंसिल, 9 2 18, करेक्ट। तो ये 18 सब में आने वाला है। अब जब सब में आने वाला है तो आप इस 18 को बाहर कर लीजिए, लेट इट बी कॉमन। तो 18 बाहर आ गया। अब अंदर क्या आएगा? Q1 Q2 अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपने बाहर कर लिया। अब अंदर क्या आएगा? अंदर आएगा वेक्टर अपॉन वेक्टर का स्क्वायर, यानी आप ये कह सकते हैं, नहीं, यूनिट वेक्टर अपॉन वेक्टर का स्क्वायर, यानी R कैप अपॉन R12 स्क्वायर,
और या फिर आप लिख सकते हैं वेक्टर अपॉन क्यूब ऑफ द मॉडुलस ऑफ द वेक्टर। तो पहला वेक्टर क्या है, -3x + 5az, सो आई कैन राइट हियर -3ax + 5az, और मॉड ऑफ द वेक्टर क्या है 25 और 9 34, √34 है ना, सो √34 और इसका क्यूब कर दिया, ओके। प्लस नेक्स्ट क्या है, देखिए 4ay + 5az, सो आई कैन डायरेक्टली राइट 4ay + 5az एंड डिवाइडेड बाय 25 और 16 41, यानी √41 का क्यूब, ठीक है। सिमिलरली अगला क्या है 3x + 5az, सो आई कैन राइट 3x + 5az एंड डिवाइडेड बाय 25 9 34, यानी √34 और इसका क्यूब। और फिर नेक्स्ट क्या है -4ay + 5az डिवाइडेड बाय √41 होल क्यूब। आपको कैलकुलेट नहीं करना है पूरा कि कैलकुलेटर से √41 निकाल के उसका क्यूब निकाल रहे हैं या √34 निकाल के उसका क्यूब निकाल रहे हैं। यू नीड नॉट टू डू दिस, जस्ट सी हाउ कैन वी सिंप्लीफाई दिस कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन इनटू अ वेरी सिंपल जेन्युइन एक्सप्रेशन, ओके। तो अब आप देखिए -3ax डिवाइड बाय √34 का क्यूब एंड +3x डिवाइड बाय √34 का क्यूब, इट मीन्स इट इज कैंसल। So I am changing the color of the pen in order to understand this properly, ठीक है। सो ये वाला पोर्शन देखिए कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर भी सेम है, न्यूमरेटर भी सेम है। -3x डिवाइड बाय √34 का क्यूब +3x डिवाइड बाय √34 का क्यूब। सिमिलरली 4ay डिवाइड बाय √41 का क्यूब -4ay डिवाइड बाय √41 का क्यूब, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बच रहा है वो काफ़ी छोटा और सिंपल हो गया। f is equals to 18 और 5az डिवाइड बाय दिस एंड 5az डिवाइड बाय दिस, तो 5az तो कॉमन निकल सकता है ना। अच्छा यहाँ भी है 5az, तो 5az तो हर जगह बच रहा है यानी, लेकिन डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो अपन क्या कर सकते हैं 5az डिवाइड बाय √34 का क्यूब 5az डिवाइड बाय √34 का क्यूब, इन दोनों को ऐड कर दिया, तो दिस इज 10az डिवाइड बाय √34 का क्यूब, ओके। Similarly 5az divided by √41 का क्यूब 5az divided by √41 का क्यूब, so I can write 5az 10az divided by √41 का क्यूब, okay, and then I can take 10 also common, az also common, so this can be simplified as 180 az in the bracket you can write 1 upon √34 का क्यूब plus 1 upon √41 का क्यूब, okay, और फिर आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, नो प्रॉब्लम, ठीक है। सो इस तरह से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आई थिंक आई मेड इट क्लियर टू एवरीवन। सो एक बार फिर से देख लेते हैं हमने क्या क्या डिस्कस किया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड डिस्कस की हमने, कूलाम्स लॉ डिस्कस किया, फोर्स ऑफ कूलाम्स लॉ ऑफ फोर्सेस, एक्सप्रेशन F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r² यूनिट वेक्टर AR। फिर उसका हमने डेरिवेशन किया, दो वेक्टर लिए जिनके पोजीशन x1 y1 z1 x2 y2 z2 थे, ठीक है। और इस तरह से फिर हमने फील्ड का एक्सप्रेशन डेराइव किया, ओके।